हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं सारा चैप्टर जो है कंप्लीट अप्रोच से बताने वाला हूं। तो ये मेरे जो नोट्स हैं इसके बाहर तुम्हें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक बार तुमने ये मेरे साथ पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, एक बार रीड आउट कर लिया, इसके बाद तुम जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ईजी वे में समझ आ जाए। और ये जो मैंने नोट्स बना रखे इतने सिंपल वर्ड्स में बना रखे कि अगर तुमने कुछ पढ़ा नहीं है और नीट 2027 तुम्हें क्लियर करना है, इससे सिंपल और कुछ नहीं होगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं प्लांट एनाटॉमी से। Study of internal organization of plant body is known as plant anatomy. Father of plant anatomy, Andrew. Father of Indian plant anatomy, Dr. A.K. Chaudhary. Tissue क्या होता है? Term given by Andrew. Group of similar or dissimilar cell having same origin or nearly same function, they constitute the tissue. In plant body two type of tissues मिलते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। Now we talking about मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. They have power of division, metabolic rate is high, nucleus is large and clear, dense cytoplasm, cell wall is thin in form of primary, cell vacuole is generally absent, photosynthesis is absent because chloroplast is in immature form, known as eoplast. Types of meristem. A. On the basis of origin and development. First we talking about primary. It is early form of meristem responsible for primary growth like apical meristem and interscalary meristem. Now we talking about secondary. It is form of later in life. It developed from permanent tissue by dedifferentiation. Example: vascular cambium, cork cambium. Responsible for secondary growth. Types of cambium. Intrafascicular cambium or fascicular cambium. It is present inside a vascular bundle. Second, interfascicular cambium. It is present between the vascular bundle. Intrafascicular cambium plus interfascicular cambium equals to vascular cambium. Vascular cambium is responsible, जो vascular cambium होता है वो responsible होता है secondary growth के. Third, cork cambium. It is responsible for secondary growth in cortical region or cortex. Talking about on the basis of position. अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जिसमें अपन ने प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया और फिर अपन ने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ कैम्बियम जिसमें इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर होता है. नाउ वी टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. एपिकल मेरिस्टेम. इट इज प्रेजेंट एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स. दे फॉर्म्स ग्रोइंग पॉइंट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ. सेकेंड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द परमानेंट सेल्स. प्राइमरी मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ. कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना एक बार. फर्स्ट, इन ग्रास इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन. सेकेंड, इंटरमोडल इलोंगेशन इन ग्रास, mint, sugarcane and equistem occurs by the activity intercalary meristem. ये दो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है तो तुम ध्यान रखना है. अबाउट लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल इन पोजिशन. इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. Example: cambium. On the basis of functions. First, protoderm. It forms epidermis. Second, ground meristem. It forms ground tissue. Third, procambium. It forms vascular bundle or vascular tissue. Meristem organization. First, apical cell theory. Meristem developed from one pyramid-like apical cell. It is valid up to pteridophyte. Second, histogen theory. Tissue forming structure is known as histogen. At shoot apex, three histogens are present: dermatogen, periblim, plerome. Dermatogen, it forms epidermis. Periblim, it forms cortex. Plerome, it forms. At root apex, an extra histogen calyptrogen is present which forms root cap. This theory is applicable for both root apex and shoot apex, but it is more correct for root. Third, tunica corpus theory. It is best explanation for shoot apex. At shoot apex, two regions, tunica and corpus, are present. First, tunica, generally single layered, it forms epidermis. Second, corpus, multi-layered, it forms remaining part of plant body. कुछ important point है जो समझना. If tunica is multi-layered, then outer layer forms epidermis. Remaining layer either degenerated or associated with corpus. Tunica and corpus can be differentiated on the basis of plane of सेल डिवीजन. टूनिका वन प्लेन डिवीजन होता है और कॉर्पस मल्टी प्लेन डिवीजन होता है. फोर्थ, क्विसेंट सेंटर थ्योरी फॉर रूट एपेक्स. एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल मेज फर्स्ट बिहाइंड द मेन मेरिस्टेम. क्विसेंट सेंटर ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन्वर्टेड अप लाइक मैनर.
These cells have less DNA, less RNA, less protein synthesis and low rate of division. It also acts as reserve meristematic. Now we talking about permanent tissue. Developed from meristematic tissue by differentiation, absence of power of division, it forms maximum part of plant body. जैसे कि अपन को पता है कि परमानेंट टिश्यू जो होता है दो टाइप का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल ओनली, और ये 3 टाइप्स की होती है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन। पैरेन्काइमा की बात करें, इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, सेल वॉल जो होती है थिन होती है जो कि मिल के बनी होती है सेलुलोज से, सेल जो होती है वो आइसोडाइमेट्रिक होती है, ये जो होती है वो स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल शेप में होती है। इट फॉर्म्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, सो इट इज़ नोन एज फंडामेंटल टिश्यू ऑफ प्लांट। फंक्शन क्या होते हैं पैरेन्काइमा के? स्टोरेज ऑफ फूड मैटर, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा, सेल्स आर बैरल शेप, ढोलक शेप का मान लो, प्रोटेक्शन के काम आता है, एग्जाम्पल एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। सेकेंड एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा प्लस एयर कैविटी, प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट, हेल्प्स इन फ्लोटिंग। Leaf forming tissue is known as mesophyll. In dicot, leaf mesophyll is differentiated palisade tissue and spongy parenchyma. Third, palisade tissue. Columnar cell like structure होती है, intercellular space absent, amount of chlorophyll present होता है। Parenchyma plus chlorophyll equals to chlorenchyma. इसका फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोर्थ, स्पंजी पैरेन्काइमा, इंटरसेलुलर स्पेस आर लार्जर सो इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, मतलब जो गैस का जो एक्सचेंज होता है उसमें ये काम। आइडियोब्लास्ट सेल, पैरेन्काइमा सेल विच स्टोर वेस्ट मटेरियल। कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ थिकनिंग मटेरियल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। These cells may be spherical, oval, polygonal, etc. It provides mechanical strength, so it is known as living mechanical tissue also. तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला इसको ध्यान रखना, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला। When chlorophyll is present, then it photosynthetic in nature. It is present in leaf, petiole, and it is provide tensile strength. In dicot stem, hypodermis is made up of collen. The maximum collenchyma is present in herbaceous dicot. In monocot root, it is absent. बात कर लेते हैं sclerenchyma. It is a dead mechanical tissue present in two forms: sclerenchyma fiber, sclerates. First, we talking about sclerenchyma. It is long elongated lignified dead cell with pointed ends. Lumen in narrow or even absent due to deposition of lignin. Gymnosperm fibers are long than angiosperm, और longest fiber कौन सा होता है? Rami fiber होता है 50 सेंटीमीटर का। सेकेंड बात कर लेते हैं sclerates की. These are dead lignified cells of different shapes. Lumen is absent due to deposition of lignin. फंक्शन क्या होता है इसका? They provide mechanical strength. याद रखना। टाइप्स ऑफ sclerates की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है ब्रेकिएट, इन पल्प ऑफ सम फ्रूट्स लाइक चीकू, गुआवा, एक्टिन, मैक्रोस्क्लेरेट्स, रॉड शेप की होती है, एग्जांपल सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। थर्ड, ऑस्टियोस्क्लेरेट्स, बोन लाइक होती है, एग्जांपल सीड कोट ऑफ लेग्यूम। फोर्थ वन, एस्टेरोस्क्लेरेट्स, स्टार शेप की होती है, एग्जांपल लीफ। और फिफ्थ होती है ट्राइकोस्क्लेरेट्स, हेयर लाइक, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल हेयर, एग्जांपल लीफ। आज क्या क्या कर लिया है अपन ने? कर लिया है अपन ने बेसिक टर्म्स पढ़ ली, टिश्यू पढ़ लिया, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है ये अपन ने ढंग से पढ़ लिया। इसके बाद अपन ने सारे मेरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे अपन ने पढ़ लिया, क्वेश्चन के बेसिस पे भी पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यू का टॉपिक भी पढ़ लिया, जिसमें अपन ने सिंपल परमानेंट टिश्यू अपन ने कवर कर लिया है, सारी चीज़ें कवर कर ली। अब अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तुम मुझे कमेंट में बता देना। और यहाँ तक कि जहाँ तक अपन ने पढ़ा है इसकी एनसीईआरटी तुम्हें रिवाइज करनी, और कमेंट में डन लिख देना जिसने मेरे साथ ये